अच्छा ये है बॉडी मूवमेंट, लोकोमोशन मूवमेंट ऑफ बॉडी, एक्सक्रीशन। इसके बाद वाला सर्कुलेशन है, तो चलो इसकी कोई नहीं, इसके बाद फिर सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। देखो सबसे पहले आते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। तो नोट करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा में इट अकर्स ड्यू टू एलर्जी फ्रॉम foreign substances, allergy from foreign substances in respiratory tract, in respiratory tract। ठीक है, और ब्रोंकियल अस्थमा में सिम्टम्स क्या होते हैं? इट मे कॉज, ब्रोंकियल अस्थमा मे कॉज coughing, coughing, wheezing, wheezing, and difficulty in breathing, difficulty in breathing, mainly expiration, difficulty in breathing, mainly expiration। ठीक है, पेशेंट यूज antibiotic therapy to remove infection। एम्फाइसेमा। अब एम्फाइसेमा क्या होता है, नोट करेंगे। एम्फाइसेमा मींस इन्फ्लेशन ऑफ फुल ऑफ एयर, इन्फ्लेशन और फुल ऑफ एयर। नोट करेंगे, इट इज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल इन्फ्लेशन ऑफ bronchioles or alveolar sac। Next point, many of septa between alveoli breaks down, many of septa between alveoli breaks down, and much of elastic tissue in the lungs is replaced by connective tissue। Next point, the major cause behind this disease is cigarette smoking and cigarette smoking and taking in toxic smoke
and taking in toxic smoke for longer time period. ठीक है, इसी को हम लोग, इसी डिजीज को, एम्फाइसेमा को ही, है ना, हम लोग एक टर्म और कॉमन यूज करते हैं, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन जब ज्यादा क्रॉनिक लेवल पे पहुंच जाता है तो किसी को भी हो सकता है। इसको सीओपीडी बोलते हैं, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब आ जाते हैं थर्ड, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर जॉब की वजह से, ऑक्यूपेशंस की वजह से होते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। इट इज कॉज्ड ड्यू टू harmful substances such as gas fumes, dust, gas fumes or dust present in the workplace, like silicosis। ये होती है उन लोगों को जो लोग काम करते हैं सीमेंट फैक्ट्री में, ठीक है। दूसरे जो कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको भी बीमारी हो जाती है, सिलिकोसिस। दूसरा एस्बेस्टोसिस। हाँ जी, बताइए। सर वो प्रेजेंट इन के बाद क्या बोला आपने? क्या? गैस फ्यूम्स और डस्ट प्रेजेंट इन वर्क प्लेस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस जो होता है, ये उन लोगों को होता है जो लोग एस्बेस्टस की फैक्ट्री में काम करते हैं, एस्बेस्टस की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये दो एग्जांपल थे। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसी में लिख लेंगे, फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं एक्चुअली हमारे लंग्स के अंदर। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ fibrous connective tissue, development of fibrous connective tissue in lungs। fibrous connective tissue in lungs। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रोंकियोइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस होती है, इट इज inflammation of bronchi। It may be caused by cigarette smoking and exposure to pollutant like
exposure to pollutant like carbon monoxide. It is characterized by overgrowth and increase in number of overgrowth and increase in number of mucus gland in bronchi. Full stop. The typical symptom is regular coughing. The typical symptom is regular coughing. And releasing greenish yellow sputum, releasing greenish yellow sputum during coughing. Pneumonia. Pneumonia is caused by Streptococcus pneumoniae. Pneumonia is caused by Streptococcus pneumoniae. And other bacteria or fungi protozoa, viruses, and mycoplasma. Next point. The alveoli becomes inflamed. The alveoli becomes inflamed. Full stop. Most of air spaces filled with fluid and dead WBC. There is limited space for diffusion of gases. Six TB, tuberculosis. Tuberculosis. It is caused by Mycobacterium tuberculosis. It is caused by Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. It most often affect pleura and lungs.
The bacteria destroy part of lungs tissue. Full stop. Gases do not diffuse easily. TB is spread by inhalation. TB is spread by inhalation. Next है diphtheria. It is caused by Corynebacterium diphtheriae. It is caused by Corynebacterium diphtheriae. Resulting enlargement of mucous membrane. Next, influenza or flu. It is caused by influenza virus. It is caused by influenza virus. Symptom includes chill, muscular pain, Symptom includes chill, fever, and muscular pain. चलिए, सर चिल मतलब क्या होता है? ठंडी लगना भाई. ओके. अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में कुल मिलाकर के हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमें वो पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो देख लेते हैं अपना सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट चैप्टर डालिए, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. तो बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड आपका, और सर्कुलेशन मतलब हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम. तो पहले तो भाई देख लेते हैं ब्लड ग्रुप है ना, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं. ब्लड देख लेते हैं कितने टाइप का होता है, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं. वेट, तो देखो सबसे पहले ये बताइए कि ब्लड में
कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, सब मिलके बना हुआ होता है। और उसके साथ में मैं आपको एक चीज और ट्राई करता हूँ देने की, अगर मेरे पास होगी तो। सर्कुलेशन में टाइप्स ऑफ ब्लड कैप्सूल्स वगैरह वो मैं आपको दे दूंगा। देखता हूँ एक मिनट, give me one minute, होगा मेरे पास। Polyplate and circulation. तो देखो, पहले सिंपल सी बात बताता हूँ। जो हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ब्लड में सॉलिड पार्ट होता है, तो सॉलिड मास होता है। और दूसरा वाला होता है दैट इज लाइट कलर्ड येलो पार्ट। ये जो ऊपर वाला है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। दिस इज ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, या यूं कहूं ब्लड प्लाज्मा का परसेंटेज कितना। तो देखो, जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये 55% होता है, और जो सॉलिड वाला मास होता है ये 45%। ऑब्वियसली 45% ही होगा। इसमें क्या क्या पार्ट पाया जाता है? देखिए, इसमें आपकी आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट हो गई, ठीक है, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, है ना। ये सब प्रोटीन वगैरह पाई जाती हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है, थ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, है ना। इतने सारे चीज, इतने सारे सॉलिड फैक्टर पाए जाते हैं। प्लस इसके साथ में सॉलिड वाले फैक्टर में, है ना, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो इसमें सॉलिड प्रोटीन वगैरह के फॉर्म में पाए जाते हैं, प्रोटीन। अगर हम बात करें ब्लड प्लाज्मा की, तो ब्लड प्लाज्मा में 90% पार्ट तो वाटर ही होता है। और क्या क्या पार्ट पाया जाता है इसमें? इसके अलावा जो पार्ट पाया जाता है वो आपके डिसॉल्व कंडीशन में मिनरल्स हो गए, और दूसरा प्रोटीन इसी में डिसॉल्व। क्यों? प्रोटीन क्या होता है? एंजाइम जो डिसॉल्व होते हैं। और क्या पाया जाता है? शुगर, इसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया। और क्या पाया जाता है? और फैट पाया जाता है। इतनी सारी चीजें डिसॉल्व कंडीशन में पाई जाती है। नोट कर लिया आप? चलो, कुछ फैक्चुअल चीजें नोट कर लीजिए अगर आपने नोट कर लिया। फर्स्ट पॉइंट, वाटर इज अबाउट 60% ऑफ बॉडी वेट, और 42 लीटर in a human of in a human of average weight 70 kg।
in a human of average weight 70 kg. Next, an increase in percentage of fat leads to decrease in percentage of leads to decrease in percentage of water. Next, sodium and chloride ions are sodium and chloride ions are important constituent of extracellular fluid ECF. सेल के बाहर जो भी फ्लूइड भरा होता है are important constituent of ECF, that is extracellular fluid. Next, blood forms 30 to 35%. Blood form 30 to 35% of ECF. Blood form 30 to 35% of ECF. Next point. Next है in adult person of 70 kg weight, in adult person of 70 kg weight have about 5.5 liter, about 5.5 liter of blood. 5.5 liter of blood. Next, अब डालेंगे हेडिंग प्लाज्मा. Plasma contain 90 to 92% water. It contain mineral, nutrient, and protein. Next point, प्लाज्मा में लिखेंगे it constitute it contain 6 to 8% of protein plasma, which is albumin and globulin, which is albumin and globulin. ब्लड कंटेन, अब जो ब्लड को जमने नहीं देता, ब्लड कंटेन एंटी क्लॉटिंग फैक्टर और एंटी कोगुलेंट. ब्लड कंटेन एंटी क्लॉटिंग फैक्टर और एंटी कोगुलेंट heparin.
which is a type of हार्मोन। आप देखो ब्लड सीरम क्या होता है ना, तो नोट करेंगे ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर is called serum. Okay. Next, usually glucose level in blood is 80 to 100 milligram per 100 ml of blood, per 100 ml of blood. ठीक है, और pH वैल्यू मैंने आपको बताई थी। हाँ, अब नेक्स्ट लिखेंगे ब्लड कैप्सूल्स, है ना, ब्लड कैप्सूल्स। आप देखो ब्लड कैप्सूल्स में मैं आपको ब्लड कैप्सूल्स एक डायग्राम बताता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। तो ब्लड कैप्सूल्स में ब्लड कैप्सूल्स कितनी तरह की पाई जाती हैं, है ना। तो एक तो पाई जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। पहले समझिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, पहले बताता हूं फिर नोट कीजिए। तो आरबीसी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, आरबीसी का तो खैर नोट ही कर लो। तो ब्लड कैप्सूल्स में पहली हो गई आपकी आरबीसी। तो आरबीसी में नोट करो, इनको हम लोग कहते क्या है, आरबीसी एक्चुअली दे स्टैंड्स फॉर, इनको हम सेल्स कभी इनके लिए टर्म नहीं यूज करते। द रीजन बिहाइंड इट, दे डू नॉट फॉलो इन द क्राइटेरिया ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल होने के लिए जितने ऑर्गेनेली वगैरह पाए चाहिए होते हैं उनमें नहीं पाए जाते। सो रेड ब्लड कैप्सूल्स आर, तो नोट करेंगे in normal man and woman, normal man and woman have 4.5 to 5 million RBC per mm cubic blood। अब अगर आरबीसी के नंबर किसी आदमी के अंदर बॉडी में बढ़ जाए, है ना, तो हम उसे कहते क्या है, उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो नोट करेंगे पॉलीसाइथेमिया is abnormal increase in the count of RBC। और अगर किसी बंदे के अंदर आरबीसी के काउंट कम हो जाए ब्लड में, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एरेथ्रोसाइटोपिनिया। abnormal decrease in RBC is called erythrocytopenia। Abnormal decrease in RBC is called erythrocytopenia। Next, mature mammalian RBC
mature mammalian RBC do not have nucleus. Next, camel and llama do not have, the camel and llama have nucleus. Camel and llama have a nucleus in their RBC. Camel and llama have nucleus in their RBC. लामा क्या होता है? ये ऊंट के जैसा ही दिखाई देता है और साउथ अमेरिकन पार्ट में पाया जाता है। थोड़ा ऊंट से साइज में छोटा होता है, कैमल से थोड़ा साइज में छोटा होता है। ठीक है। अब देखो आरबीसी के अंदर ऑब्वियसली आरबीसी का ऐसे ओवल स्ट्रक्चर होता है, यू नो ऑल। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है और आरबीसी के अंदर यहाँ पर है ना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो आयरन कंटेंट और दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन। आयरन कंटेंट और ग्लोबिन प्रोटीन है ना। और एवरेज किसी भी बंदे के अंदर जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में 12 टू 16 ग्राम के बीच होना चाहिए। 14 इसीलिए एवरेज माना जाता है। तो नोट करेंगे, हीमोग्लोबिन हैव ग्लोबिन प्रोटीन एंड आयरन। A healthy person contain 12 to 16 gram. A healthy person contain 12 to 16 gram of 12 to 16 gram of hemoglobin. 12 to 16 gram of hemoglobin per 100 ml of blood. Per 100 ml of blood. Next, RBC is produced in liver at embryonic stage तो जब कोई बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो आरबीसी, क्योंकि उसपे बोन मैरो का फंक्शन उस टाइम पे नहीं होता है, तो कोई भी बच्चा अगर एम्ब्रियो स्टेज में अपने मदर के अंदर है तो मदर से ब्लड नहीं लेता। डोंट गेट कंफ्यूज, मदर से बिल्कुल ब्लड नहीं लेता, मदर से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। मदर से प्लेसेंटा के थ्रू सिर्फ न्यूट्रिएंट ट्रांसफ्यूज होते हैं। तो फिर आखिर बच्चे का जब हार्ट काम करने लगता है 3 महीने बाद, तो आखिर ब्लड कहां से? तो ब्लड उस समय उसको उसके लिवर में बनना होता है। फिर जब बच्चा बर्थ ले लेता है तो उसके बाद से ब्लड लिवर की जगह बोन मैरो में बनने लगता है, उसका पार्ट और लिवर में बनना बंद हो जाता है। तो नोट करेंगे, RBC is produced in liver at embryonic stage, but from birth onward, it is produced. From birth onward, it is produced in bone marrow. Next point. Iron and protein important है। Iron and protein are important for RBC formation. RBC formation, but
vitamin B12, vitamin B12 and folic acid. Vitamin B12 and folic acid are important for maturity. Vitamin B12 and folic acid are important for maturity of RBC. Deficiency of these nutrients leads to anemia. Deficiency of these nutrients leads to anemia. Next, excess of RBC is stored in the spleen. Hence, it is called blood bank. It is called blood bank. After death, RBC goes to spleen. After that death, RBC goes to after death, RBC goes to spleen. Hence, it is also called graveyard. Hence, it is also called graveyard. Graveyard of RBC. ठीक है, तो ये तो था हमारा आरबीसी के बारे में। अब देखो आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स। तो डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स जो होती हैं, दे आर 6000 to 8000 per mm क्यूबिक ऑफ ब्लड, है ना। इतने इनके नंबर होते हैं। एक और चीज है, ये पूछा भी जा चुका है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो रेशियो होता है, ये होता है भाई 1:600। इस रेशियो में पाई जाती है हमारे ब्लड के अंदर। ये पूछा भी जा चुका है। और राइज इन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के नंबर अगर बढ़ जाना, तो जो कि बैड सिम्टम है, राइज इन डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, है ना। और एबनॉर्मल जब राइज होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है कि जब कोई हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तो नॉर्मली डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, है ना, इंक्रीज इन number of WBC. But abnormal increase in abnormal rise in WBC, that is called leukemia. Abnormal increase in WBC is called leukemia. और ल्यूकेमिया होता है भाई साहब ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में WBC के नंबर बहुत ज्यादा एबनॉर्मली बढ़ जाते हैं, मैसिव वे में बढ़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड दिस वन। And fall in WBC, नंबर इनके काउंट कर बुना, fall in WBC is called leukopenia.
fall in WBC number is called leukopenia. तो अगर WBC के नंबर बॉडी में कम हो जाए तो हम लोग उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो WBC कितने टाइप, अच्छा इनके शेप और साइज अलग अलग होते हैं सबके। तो अब देखो WBC का मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ, ये आपको नोट करना पड़ेगा। ये मैं आपको डायग्राम अपना हैंड रिटन राइटिंग में आपको दिखाता हूँ, एज इट इज आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये दिखाई दे रहा है या थोड़ा लार्ज इसको वो किया जाए, बड़ा किया जाए? दिखाई दे रहा है सर। तो प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखो मैं समझा देता हूं पहले। तो WBC देखो यहां पर जो होती है ना, WBC को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक आप देखेंगे कि ल्यूकोसाइट्स को हम दो कैटेगरी, एग्रेनुलोसाइट, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, ग्रेनुलोसाइट्स इनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। एग्रेनुलोसाइट को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, मे बी बी और टी सेल्स। बी सेल्स जो होते हैं ये बनते हैं लिवर में, बी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो बनते हैं कहां पे, थाइमस ग्लैंड में, ठीक है। बी लिम्फोसाइट दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी एंड टी लिम्फोसाइट दे डायरेक्टली अटैक। अब देखो दे आर नॉन मोटाइल लिम्फोसाइट जो होते हैं एंड नॉन फैगोसिटिक। ना तो ये मोटाइल होते हैं, मतलब चलते नहीं, इधर उधर मूव नहीं करते, ब्लड स्ट्रीम के साथ ही बहते हैं। दूसरा नॉन फैगोसिटिक, ये किसी भी पैथोजन को खाने का काम नहीं करते। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड डिस्ट्रॉयड माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन्स एंड ट्यूमर सेल्स। तो ये क्या करते हैं कि ट्यूमर सेल्स को मारने का काम करते हैं, टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करते हैं, माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करने। पूरे WBC के काउंट का 20 to 25% ये होते हैं, काउंट करते हैं लिम्फोसाइट्स। लाइफ स्पान इनका कुछ दिन का होता है, फ्यू डेज टू लेकर फ्यू ईयर्स तक का हो सकता है, कुछ साल तक का हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सी किस डिजीज के खिलाफ बनने वाली है बी सेल्स टी सेल्स। दूसरी आती है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट इनमें सबसे बड़ी होती हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, नीट का क्वेश्चन है। मोटाइल होती हैं, ये मूव कर सकती हैं, फैगोसिटिक होती हैं, बैक्टीरिया को खाने का काम करती हैं। दे इंगल्फ बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिज, सेल का जो वेस्ट होता है उसको भी खाने का काम करती है। 10 to 20 आवर्स इनका लाइफ स्पान होता है। अब आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट का लाइफ स्पान 4 to 5 डेज होता है। इओसिनोफिल्स आती हैं, इओसिनोफिल्स ग्रेनुलोसाइट एक टाइप की। दे इंक्रीज एलर्जी के टाइम पे, अस्थमा के टाइम पे, हे फीवर के टाइम पे इंक्रीज हो जाती हैं। इनका काम क्या होता है, दे हेल्प इन डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट, तो ब्लड क्लॉटिंग को बॉडी में डिसॉल्व करने का काम करती हैं। ये नॉन फैगोसिटिक होती है, कुछ खाती नहीं है किसी भी तरह के माइक्रोब को। दे सिमिलर लाइक लाइसोसोम्स, दे डिस्ट्रॉय प्रोटिस्ट प्रोटिस्ट। तो ये प्रोटिस्टा के जो जितने सारे प्रोटिस्टा होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, लाइसोसोम की तरह काम करती हैं। बेसोफिल्स, दे रिलीज हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन वो जो आपका ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, तो ये हेपेरिन रिलीज करती हैं। सेक्रोटोनिन इंक्रीज करती है, हिस्टामाइन इंक्रीज करती है। हिस्टामाइन क्या होता है, दिस इज एलर्जेंट, ठीक है। दे आर लीस्ट इन काउंट, सबसे कम नंबर में यही पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज्यादा पाई जाती हैं ऑफ ऑल WBC, 60 to 65%। दे ईट हार्मफुल जर्म्स एंड दैट्स व्हाई दे आर फैगोसिटिक इन देयर बिहेवियर, ठीक है। तो इतनी तरह की WBC पाई जाती हैं। मैंने इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है वो सब लिख दिए हैं यहाँ पे, आप उनको नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको, और जहां पे डाउट हो पूछ लीजिए।
नोट करके मुझे मैसेज करिएगा। सर वो डिस्ट्रॉय पैरासाइट्स लिखा है इसमें यूसिनोफिल में, जो अपने लाल मार्क में रखा है। डिस्ट्रॉय प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट लिखा है। सॉरी, पैरासाइट्स ही लिखा है, हाँ पैरासाइट्स ही। डन सर। मदिहा, फौजिया, मेघा, मेघना, नबीला, आप लोगों ने किया बेटा? यस सर, हो गया। क्या? ओके, तो ये हमारे डब्ल्यूबीसी थे, है ना? और एक पॉइंट इसमें और नोट करके, नीचे नोट करके लिखो, ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स
are formed in bone marrow. Granulocytes and monocytes are formed in bone marrow. Lymphocytes are produced mainly in lymph node, spleen, thymus, tonsils, and bone marrow. Next point. सर लिम्फ नोड स्प्लीन के बाद क्या बोला? Lymph node, spleen, thymus, tonsils, and bone marrow. ओके सर. Next है thrombocytes. They normally contain $150,000 to 350,000 per mm cubic. They normally contain 150,000 to 350,000 per mm cubic. Next point. Increase in number is called thrombocytosis. Increase in number is called thrombocytosis. ठीक है. And decrease in number is called thrombocytopenia. And decrease in number is called thrombocytopenia. Next point. They are round, oval, or disc-like in structure. Round, oval, or disc-like in structure. They do not have nucleus. And colorless. Next point. Their formation takes place in bone marrow. Their formation takes place in bone marrow. Their lifespan is a week. Their lifespan is a week. Next point. They also help in blood clotting. They also help in blood clotting. कल हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, थोड़ा सा बताऊंगा ब्लड ग्रुप के बारे में. और बाकी तो ब्लड ग्रुप के बारे में आपके 12th क्लास में जेनेटिक्स में भी है. तो थोड़ा सा ब्लड ग्रुप
के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सर्कुलेटरी पार्ट पढ़ेंगे, सर्कुलेशन होता है कैसे, इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि सर्कुलेशन वाले पार्ट से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाल्व से क्वेश्चन आते हैं और ब्लड कहाँ से कहाँ को जाता है ना? तो वो समझने वाली बातें, वो सब रटने या याद करने वाली बातें नहीं है, ठीक है? सो कल हम लोग इसको सर्कुलेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? और ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे। कोई डाउट भाई किसी को? सर अभी आपने हिस्टामाइन के बारे में क्या बताया था? मैंने हिस्टामाइन के बारे में कुछ नहीं बताया था, मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। सर आपने बोला था ना कि एलर्जेंट कुछ है ऐसा कुछ। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब मैं आपको सेल्स पढ़ा रहा था, ब्लड टिश्यूज़ पढ़ा रहा था, आप भूल गए शायद। एनिमल टिश्यू पढ़ाया था ना? नहीं पढ़ाया? एनिमल टिश्यू वाले पार्ट में मैंने ये बताया था कि मास्ट सेल होती है हमारी बॉडी में, मास्ट सेल्स जो होती हैं, वो रिलीज़ करती हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन इट कॉजेज़ एलर्जी, जब हमें खुजली होती है तो मास्ट सेल हिस्टामाइन रिलीज़ कर चुकी होती हैं और एक सिंबल होता है कि बॉडी में किसी पॉइंट में अटैक हुआ है या किसी तरह का एलर्जन। सो दे आर रिस्पांसिबल फॉर एलर्जी, एलर्जी रिस्पॉन्स, ठीक है? और हमारे स्किन में नीचे की तरफ पाई जाती हैं, एपिडर्मल पार्ट के नीचे जो हाइपोडर्मल पार्ट होता है वहाँ पे पाई जाती सर ये कौन से चैप्टर में बोला अभी आपने? है। ये एनिमल टिश्यू वाले पार्ट में। नहीं सर वो नहीं पढ़ाया अभी। अच्छा, ओके सर, थैंक यू ठीक है सर। भाई, वेलकम भाई।